यस मैम हो रही है। अब हो रही है? यस मैम। यस मैम। चलें, अच्छा हम लोग यहाँ पे स्टार्ट। यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ। दिस इज द प्रिमिटिव और प्राइमोडियल गोनेड which is developing around the medial aspect of this pink tissue is the developing kidney. ठीक है, अब ये primitive gonad जो है along the medial side of developing kidney arise कर रहा है from underlying mesenchyme. ठीक है जी, अब हमने ये बात की थी कि depending माइक ऑफ रखें सारे। अच्छा जी, अब हमने ये बात की थी कि ये गोनेड जो है ई कन्वर्ट होगा इनटू द टेस्टिस और इन फीमेल जो है इसने ओवरी में डेवलप होना। ठीक है, ये प्रोसेस शुरू हुआ था 4th वीक में एंड इट रिमेन्स अनडिफरेंशिएटेड टिल दी और इनडिफरेंट टिल 7th वीक ऑफ जेस्टेशन। अच्छा जी, फिर इसके बाद क्या होना है अब हम देखते हैं कि इस गोनेड के अंदर हमारे जो है प्राइमरी फॉलिकल वो किस तरह से डेवलप होंगे। They will develop as primordial germ cell. Primordial germ cell कहाँ से आ रहे हैं? They will arise from the wall of the yolk sac near allantois. Then they migrate through mesentery into the genital ridges. अभी अब आपको मैं इसके डायग्राम में भी क्लियर कर। वहाँ पे क्या होगा, जब germ cells जो है वो genital ridges में migrate करेंगे, there they will influence the spermic epithelium to proliferate into column of cells. ये जो फर्स्ट कॉलम बनेगा दैट इज द प्राइमरी सेक्स कॉर्ड्स। ये सेक्स कॉर्ड्स जो है ब्रेक डाउन करेंगे और ये रीजनरेट करेंगे टू फॉर्म द सेकेंडरी सेक्स कॉर्ड्स। These sex cords then invaginate the underlying mesenchyme and they further break up into the small granulosa cells to surround the primordial germ cells and they will form the primordial follicle. ठीक है, अब इस नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम में आप इसको देखो। ये हमने बात की थी कि जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं उन्होंने पहुंचना है डेवलपिंग गोनेड तक। कहाँ से वो अराइज करते हैं? फ्रॉम द yolk sac. Yolk sac they will this is the cross section of the developing embryo. यहाँ से they will ascend through mesentery and they will come to lie in the region of developing gonad. ठीक है, जो gonadal ridge हमने बात की थी। There they will influence the underlying mesenchymal tissue to proliferate into the primary sex cords. Then these sex cords will break down to form the secondary cords और फिर further ये secondary cords भी break करके granular cells बना लेती हैं। आगे हम देखते हैं जी, और ये प्राइमोडियल सेल्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, ये वाली सेकेंडरी सेक्स कॉर्ड्स है। अभी इन्होंने ब्रेक डाउन हो ग्रानुलोसा सेल्स बनाना है। these granulosa cells then will surround these primordial germ cells. This primordial follicle कैसे बनता है? This is an oocyte within a single layer of granulosa cells. फिर next generation cells की आती है, these are the theca cells. They develop from the coelomic epithelium and they get separated from the granulosa cells by a basal lamina and finally आपका एक primary follicle बन जाएगा. This is the primary follicle. ठीक है, वो जो हमारा प्राइमोडियल जर्म सेल जिसने सेक्स कॉर्ड्स बना के उनको डीजनरेट किया था ग्रेनुलोसा सेल्स में, इन ग्रेनुलोसा सेल्स में दे विल सराउंड दी दिस जर्म सेल। उसके बाद क्या होगा, दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ सेल्स जो कि इंड्यूस हो रही है। दीज आर द थीका सेल्स। ये थीका सेल्स जो हैं दे विल सराउंड द ग्रेनुलोसा सेल लेयर and the both layers are separated by this bluish color जो blue color से indicate की जा रही है। This is the basal lamina. So this is the final constituent cells of a primary follicle. ठीक है जी, ये primordial follicle था जिसमें से granulosa cells थे और एक basal lamina था। इसके बाद theca cells develop हुए, उन्होंने इसको surround किया, फिर finally आपका primary follicle बन गया। इसके बाद इसमें कोई change further नहीं आनी till after birth. तो प्राइमरी फॉलिकल्स हम कहते हैं जी कि these are predetermined by birth of any female baby. During intraembryonic life, 20th week of gestation पे इनका नंबर 6 to 7 मिलियन है। ठीक है, एक दफ़ा जो भी फीमेल एम्ब्रियो में ये प्राइमरी फॉलिकल उनकी ओवरीज में बन गए, सो बन गए, उसके बाद there would be no further
formation of these follicles. This is in contrast to the germ cells of male, जहाँ पे testes जो हैं in the testis process of spermatogenesis is continued ongoing process. वो जो throughout life नए sperms बनते रहते हैं, degenerate होते हैं. But what happens in females? एक दफ़ा जो है उनके जो सेल प्राइमरी follicles बन गए, वो नंबर जो है फिर इंक्रीज नहीं करता, विद पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करता है. Here we can see कि जब 20th वीक पे जो है number of around 6 to 7 million, by about birth the number reduce होगा, सिर्फ 1 to 2 million रह जाता है. ठीक है. उसके बाद क्या होगा? टाइम ऑफ puberty this gets reduced to only 0.3 to 0.4 million, और फिर इन 0.3 to 0.4 million में हर month after the institution of menstruation 3 to 4 follicles they get ripe, और फिर उसके बाद उनमें से डोमिनेंट फॉलिकल बनेगा और फिर बाकी सब डीजनरेट हो जाएंगे इंक्लूडिंग डोमिनेंट वन एज वेल, प्रेगनेंसी इज नॉट देयर. और जब ये सारे फॉलिकल्स जो हैं दे हैव बीन कंसीव्ड थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव ईयर ऑफ ए, तो क्या होगा? एट द एंड दे वुड बी नो फॉलिकल, और दिस इज द टाइम व्हेन से दैट नाउ दिस लेडी हैज एंटर्ड इनटू द मेनोपॉज. इतनी चीज क्लियर है अभी तक? यस मैम. अच्छा, ये कुछ और स्टूडेंट्स भी आए हैं, उनको भी साथ में ले लें, तो हर दफ़ा मुझे अपनी स्लाइड को ना मिनिमाइज करता है. 9:15 के बाद ना बच्चे मजीद हैं वो नहीं ऐड होंगे. ठीक है, ये सब स्टूडेंट्स के लिए भी है, और कितने ये भी आए हैं आपके? बस ये एक ही बच्चा है. चलें फिर हम अपना करते हैं. अच्छा, अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि हमारे जो ओनेट था, जो ओवरी थी, उसमें प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स और फाइनली प्राइमरी फॉलिकल कैसे बने. ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स बन गए. अब उसके बाद देखना है कि कॉर्टेक्स और उसका मेडुला जो है वो कहाँ से डेवलप हो रहा है. दैट डेवलप्स फ्रॉम द मेसेंकाइम अंडरलाइंग द जेनिटल रिज. Surface of ovary remains covered by the coelomic epithelium, or development of an oocyte is arrested at the prophase of first meiotic division. This thing is important to remember. जो हमने अभी प्राइमरी फॉलिकल पीछे देखा, that was composed of granulosa cells and theca cells and containing a primordial germ cell. ये get arrested at first meiotic division, और ये first meiotic division कब complete होगी? जब after birth, after puberty, at the time of each ovulation, just before that ovulation, ये first meiotic division जो है ये complete होती है. ठीक है, उसके बाद जो है वो जो follicle है that gets entered into second meiotic division. Later on, these developing gonad they will descend down into the pelvis. अच्छा, अब ओवरी के बाद नाउ लेट्स डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब. अब एम्ब्रियोलॉजी में ना एक चीज़ जो है वो ये है कि एम्ब्रियोलॉजी में कोई बहुत ज़्यादा आपको फिजियोलॉजी समझने की ज़रूरत नहीं है. इसमें से बहुत सी चीज़ें, बल्कि मेजॉरिटी एम्ब्रियोलॉजी है वो 80% इज योर रट एप्लीकेशन. ठीक है ना, तो इसमें डिफरेंट आपको जहन में रखना है कि हर सिस्टम की जो है डेवलपमेंट वो किस वीक में स्टार्ट हुई, कौन सी जो उस पर जर्म लेयर्स थी, दोज वर इन्वॉल्व फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एनिविस्टा. तो इसलिए इसमें जो है मैथमेटिक्स वाली चीज़ समझने वाली नहीं है. इसमें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, बट इन द एंड यू हैव टू मेमोराइज द कॉन्स्टिट्यूएंट लेयर्स. योग सेक्स से क्या क्या आ रहा था, ओवरी का मेडुला कहाँ से आ रहा था, उसके ग्रानुलोसा सेल्स किधर से आ रहे थे. ठीक है ना, ये आपके सिंपली मेमोराइजेशन. नाउ लेट्स स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस एंड ओवरी. अलबत्ता ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अभी आपको डायग्राम से भी बड़ा अच्छा क्लियर होगा. अब फीटस हैज 2 सेट्स ऑफ डक्ट्स. ठीक है जी, ये हम कौन से फीटस की बात कर रहे हैं? कोई भी अभी जो इनडिफरेंट है, जिसे हमने कहा जी कि मेकिंग डिफरेंट गोनेड डेवलप होता है, वैसे ही ईच फीटस इज गोइंग टू हैव 2 सेट्स ऑफ
these ducts or tubes. एक जो pair है that is the Mullerian or paramesonephric ducts, and second one is the Wolffian or mesonephric ducts. The paramesonephric ducts, and they are going to develop into ovaries, while Wolffian or mesonephric ducts, they will develop as in male, they will develop as ductus staphylos. Mullerian ducts, these appear as an invagination of the coelomic epithelium into the mesenchymal tissue, which is lateral and cranial to mesonephros at 5th to 6th week of gestation. Absence of anti-Mullerian hormone, it allows Mullerian ducts to develop. ठीक है जी, अगर anti-Mullerian hormone नहीं है तो क्या होगा, Mullerian ducts जो हैं वो डेवलप होंगी और ये फीमेल में fallopian tubes बनाएंगी. These ducts grow caudally and medially to fuse in midline. फिर जो midline portion है, this will develop into uterus, cervix and upper vagina, while cranial free portion will form fallopian tubes. Now get it cleared from this again, from this diagram. हमने बात की थी कि lateral and cranial to developing gonad जो हैं, दो sets of tubes appear हो रहे हैं किसी भी fetus के अंदर. एक जो है, this is the Mullerian duct जो कि female part में convert होगी, और this is the Wolffian duct जो कि मेल पार्ट्स कन्वर्ट होंगे. अब क्या है, इन एब्सेंस ऑफ एंटी मुलेरियन हार्मोन जो मुलेरियन डक्ट्स हैं ये कंटिन्यू टू डेवलप, वाइल जो वुल्फियन डक्ट्स हैं ये डीजनरेट हो जाएंगी. अब इसमें क्या हुआ कि ये दोनों जो हैं फेलोपियन ट्यूब्स, दे स्टार्ट ग्रोइंग कॉर्डियली एंड मीडियली टू गेट फ्यूज विद ईच अदर इन मिड लाइन. यहाँ पे ये दोनों ट्यूब्स आपस में जब फ्यूज होती हैं तो अपर फ्यूज्ड पोर्शन इट विल गेट कन्वर्टेड और डिफरेंशिएटेड इनटू यूट्रस एंड लोअर पार्ट इनटू द वजाइना. अभी ये सॉलिड है, बाद में इनकी रिकैनलाइजेशन हो जाएगी और इनके अंदर कैविटीज बन जाएंगी. वाइल उनके जो प्रॉक्सिमल फ्री और थिन पोर्शंस थे, दे विल गेट डिफरेंशिएटेड इनटू फेलोपियन ट्यूब. ठीक है, इजी हो गया, क्लियर हुआ ये चीज. एनीबडी? यस मैम. सिंपल सी ये है कि दो तो डक्ट्स जो हैं, टू पेयर्स ऑफ डक्ट्स आर अपेयरिंग इन ईच फीटस. मेल में वुल्फियन डक्ट्स जो हैं ग्रो करेंगी और पैरामीसोनेफ्रिक जो हैं वो डिजेनरेट कर जाएंगी, और फीमेल में ये ट्यूब्स जो हैं ये ग्रो करेंगी और वुल्फियन डक्ट्स जो हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंटी हार्मोन ये डिजेनरेट कर जाएंगी. इन दोनों ट्यूब्स ने मीडियली और कॉर्डियली ग्रो करके मिड लाइन में फ्यूज होना. फ्यूज होने के बाद इनमें रिकैनलाइजेशन हो जाएगी. अपर पार्ट इज गोइंग टू फॉर्म यूट्रस एंड सर्विक्स एंड वजाइना, व्हाइल प्रॉक्सिमल जो थिन पोर्शंस हैं इन्होंने फेलोपियन ट्यूब्स बना देती हैं. तो इसका ये तो बड़ा सिंपल हो गया. अब वजाइना जो है इसकी थोड़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड डेवलपमेंट है. अनलाइक आपके ये यूट्रस और सर्विक्स जो कि सिंपली पैरामीसोनेफ्रिक डक्ट से आ रहा था, वजाइना जो है इट इज़ गोइंग टू बी डेवलप फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज. वो हम देखते हैं जी कैसे. अब जब हमने कहा इस स्लाइड में कि जब ये दोनों फ्यूज पार्ट्स जो हैं इसके नीचे एबट करते हैं यूरोजेनिटल साइनस, वहाँ पर इनके लोअर एंड के ऊपर जो है वो मुलेरियन ट्यूबरकल्स बन जाते हैं. ठीक है, अच्छा. अब इन ट्यूबरकल्स ने मेन जो है आपकी आगे वजाइना की ग्रोथ को इनिशिएट करना है. कैसे ग्रोथ को इनिशिएट करेगा? नाउ कंसीडर इन दिस स्लाइड. दिस स्लाइड सबको क्लियर नजर आ रही है? जो दो फ्यूज्ड पोर्शंस थे ट्यूब्स के, ठीक है, वो अब नीचे एबट कर रहे हैं इनटू द यूरोजेनिटल साइनस. एबटिंग पॉइंट पे यहाँ पर एट द लोअर एंड ऑफ फ्यूज्ड ट्यूब्स जो है मुलेरियन ट्यूबरकल अपेयर होते हैं. ये मुलेरियन ट्यूबरकल जो हैं यूरोजेनिटल साइनस में साइनोवजाइनल बल्ब्स को ट्रिगर करेंगे. ठीक है, ये जो साइनोवजाइनल बल्ब है, अब यहाँ पे टिश्यू का हाई पोटेंशियल है फॉर द प्रोलिफरेशन. दिस प्रोलिफरेशन is going here. ठीक है, जैसे जैसे ये प्रोलिफरेशन बढ़ती जाएगी, लेंथ ऑफ दिस प्लेट जो है ये इंक्रीज होती जाएगी.
ठीक है जी। दिस वाज द साइट ऑफ मुलेरियन ट्यूबरकल। यहाँ पे इन्होंने अगेन क्या किया, यूरोजेनिटल साइनस पे साइनोवैजिनल बल्ब को स्टिमुलेट किया, टिश्यू प्रोलिफरेशन स्टिमुलेट हुई, टिश्यू ने ग्रो करता गया, जितनी टिश्यू प्लेट ग्रो करती जाएगी वो ही आपकी वजाइनल लेंथ को जो है वो इंडिकेट करेगी। ठीक है जी। बाद में ये वाली जो प्लेट थी ये कैनलाइज होके इस तरह से वो एक फुल फ्लैश जो है वो पेटेंट वजाइना उसने बना दिया। ठीक है जी। और जो इसका डिस्टल एंड है दैट विल परसिस्ट एज ए पेपरी थिन हाइमन। इसको जो है मजीद लार्ज उसमें आप देखो अगेन मैं इसको जो है कम से कम 3 या 4 दफ़ा आपके लिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको साथ साथ रजिस्टर करते जाओ। दिस वॉज द मुलेरियन ट्यूबरकल। इट इनिशिएटेड विदिन द यूरोजेनिटल साइनस द साइनोवैजिनल बल्ब। साइनोवैजिनल बल्ब की यहाँ पे प्रोलिफरेशन फिर नेक्स्ट स्टेप पे शुरू होगी। जैसे जैसे प्रोलिफरेट करते जाएंगे यहाँ पे एक वजाइनल प्लेट बनती जाएगी। जितना ये प्रोलिफरेट करेंगे उतनी ही वजाइनल की लेंथ बनेगी। ये जो वजाइनल प्लेट है ये कैनलाइज होके वजाइना बनाएगी और उसका जो बेसल पोर्शन है दैट विल परसिस्ट एज हाइमन। अब अगर यहाँ पे ये दोनों पोर्शन मुलेरियन ट्यूबरकल का और साइनोवैजिनल बल्ब का अगर इट फेल्स टू यूनाइट विद ईच अदर और इसकी प्रॉपर कैनलाइजेशन नहीं होती तो दैट एरिया विल परसिस्ट एज वजाइनल सेप्टम। हमने सुना हुआ है ना कि बहुत सी लेडीज में ये जो एक डेवलपमेंटल एनामली होती है जो वजाइनल सेप्टम है, दे कम विद कंप्लेंट ऑफ एमेंटिया जी। और फिर आपको पता चलता है कि या तो इम्परफोरेट हाइमन था, हाइमन का परफोरेट नहीं हुआ जिसकी वजह से सारा जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो यहाँ पे कलेक्ट हो गया, या हायर किसी जगह पे ये वजाइनल सेप्टम एक परसिस्ट कर गया जिसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो था वो सारा यहीं कहीं कलेक्ट हो गया और वो एक्सटीरियरली जो है वो स्केप नहीं कर सका। वजाइना की जो है ये अभी तक की फॉर्मेशन ये क्लियर है? Any conclusion, any question till now? हम आगे फिर चलें। हाँ जी, क्लास साइन इन करके सो गया? मैम आगे चलें। क्लियर है? चले भाई लोग, मुझे किसी की भी आवाज नहीं आई है, किसी भाई की मुझे आवाज चाहिए भाई। जी कौन कौन है पार्टिसिपेंट्स में? हारिस है, ये देखो ये तुम लोगों के जो ये लड़के हैं ना ये सारे ना लैपटॉप अपने ऑन करके तो फिर दोबारा सो गए हैं। एक मिनट बच्चे, हाँ हमजा किधर है? हमजा रफीक। यस मैम। दस हो रहे इतनी देर से किसी भाई की फरमाइश कर रही थी, मुझे अपनी जो है वो स्लाइड्स को मिनिमाइज करना पड़ा तुम लोगों के नाम ढूंढने के लिए। समझ आ रहा है क्या पढ़ा जा रहा है? यस मैम समझ आ रहा है। और ये हसन किधर है? हसन, अब्दुल्ला, मुझे जिस स्टूडेंट की तरफ से फीडबैक नहीं ना मिला मैंने बच्चों उसकी अटेंडेंस मैंने फॉरवर्ड नहीं करनी है। सिंपल इज दिस। अगर मैं भी इस वक्त उठ के तुम लोगों के लिए बैठी हुई हूँ तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग भी बैठे सुन रहे होंगे। अली हसन किधर है? प्रेजेंट मैम। है ना वो इस वक्त सो रही है साइन इन करके।
अच्छा जी, अब आप आए इस पे नेक्स्ट स्लाइड पे। स्लाइड्स शेयर हो रही है ना? यस मैम। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं जी कि डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो इंटरनल जेनिटेलिया था वो हमने सारा देख लिया, कैसे ओवरीज डेवलप हुई। फिर हमने फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस को देखा कि वो पैरामीसोनेफ्रिक डक्ट से डेवलप हुआ। Then thirdly, we studied about the vagina, वो कैसे यूट्रोजेनिटल साइनस से डेवलप। Now coming towards the exterior external genitalia. अब इसका भी क्या है कि अगेन ये भी 5th-7th वीक पे साइड बाय साइड जो है वो डेवलप कर रहे हैं। इंटरनल भी ऐसे ही हमारा रफली अराउंड 5 to 6 वीक पे डेवलप होना शुरू हुआ था। लाइकवाइज जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, दिस आल्सो स्टार्ट्स डेवलपिंग इन द 5th वीक ऑफ जेस्टेशन। अब ये कैसे डेवलप होगा? इट इज विल अपीयर एज अ folds of cloacal folds। क्लोएका, जब आप उसकी गट की एम्ब्रियोलॉजी को रिकॉल करो तो वहाँ पे हमारे बनते थे क्लोएकल मेम्ब्रेन्स, ठीक है जी। तो वहाँ पर जो है एडजेसेंट टू क्लोएकल मेम्ब्रेन्स 2 folds ऑफ क्लोएकल मेम्ब्रेन के पास जो हैं 2 क्लोएकल folds डेवलप होंगे। These folds will get fused anteriorly to form the genital tubercle। अब फीमेल में ये बनाएगा genital tubercle clitoris, while in male this will develop as penis। अब एक डायग्राम में देखो कि हमें एक हाजी कि दिस इज द क्लोएकल मेम्ब्रेन। क्लोएकल मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे क्लोएकल फोल्ड्स और क्लोएकल थिकनिंग्स जो हैं वो अपेयर होनी शुरू होती हैं, ठीक है जी। ये थिकनिंग्स जो हैं ये हमें लेबिया माइनोरा बनाएंगे और इनका फ्यूज्ड एंटीरियर पोर्शन जो है इट विल गेट डिफरेंशिएटेड इनटू जेनिटल ट्यूबरकल, ठीक है जी। फर्दर क्या हो रहा है कि दिस cloacal membrane it gets divided by these folds into the anterior urogenital membrane और posterior जो है वो anal membrane है, ठीक है। इस जो urogenital sinus है इसमें बाद में openings बनेंगी आपकी urethra की और vagina। अब हमने कहा था जी ये जो initially paracloacal fold develop हुआ था it is going to be differentiated into labia minora। इनके लैटरल एक और फोल्ड्स या स्वेलिंग्स अपेयर होंगी जिनको हम कहते हैं जी जेनिटल स्वेलिंग या साइनोविजाइनल बल्ब्स, ठीक है। अब ये ये जो है स्क्रोटल स्वेलिंग्स ये बना देती हैं फिर मेल में स्क्रोटम एंड इन फीमेल लेबिया मेजोरा। ये फिर फाइनल लुक आएगी एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। यूरोजेनिटल मेम्ब्रेन, एनल मेम्ब्रेन, this is the labia minora, this is labia majora, or fused anterior parts of labia minora is the clitoris. So, to again repeat for you, cloacal membrane they get divided by the urogenital membrane anteriorly and anal membrane posteriorly. These folds anteriorly are called the urethral folds and will form the labia minora, while scrotal swellings they will form the labia majora. Urogenital sinus becomes then the vestibule of vagina और फिर finally externally recognizably female genitalia जो है वो कब बनेगा? in 12th week of gestation। तो ये सारा काम जो 5th week पे शुरू हुआ था और primordial germ cells जो 4th week में बनना शुरू हुए थे that remain indifferent till the age of 6th to 7th week of embryonic period और फिर final maturation और differentiation जो है वो कब कंप्लीट होती है? इन 12th वीक ऑफ जेस्टेशन, ठीक है जी। तो आई गेस दिस वाज द लास्ट स्लाइड। यस, तो दिस वाज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल जेनिटेलिया। अब एनी क्वेश्चन, इफ यू एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन?